Good morning, students. I, Yash Santwani from Shivjyoti Educational Group. I welcome you all to this video session. So class, we have already covered so many topics and lots of chapter from our class 11th session, and today we are here with the next chapter, that is bills of exchange. Truly a chapter that is depend on your journal entries. मैंने आपको हमेशा कहा है कि अगर आपकी जर्नल एंट्री स्ट्रॉन्ग है तो आपको अकाउंटिंग आती है. I have divided this particular chapter into 3 parts, and today we are discussing only part 1, and in this part 1 we are covering the terminology. But before moving to the basic terms of this chapter, first of all let me explain this chapter on the board part. Let us have a practical aspect of this chapter on the whiteboard side. So class, for better understanding of this chapter, let us have a look of the example. पहले एक example देखते हैं हम लोग. For an example, we are having 2 person. One is your A and the another one is your B. A ने B को goods बेचे कितने रुपीस के? 10,000 रुपीस के. क्या करा है A ने? A sold goods to B for रुपीज 10,000. ऑलराइट, इसका मतलब क्या हो गया क्लास कि ये A जो है वो B से 10,000 रुपीज मांगता है. दैट मीन्स दैट B इज अ डेटर फॉर A एंड A इज अ क्रेडिटर फॉर B. एम आई राइट? A ने गुड्स बेचे हैं B को और B ने परचेस करे हैं A से. तो A के लिए ये जो B है वो हो जाता है डेटर और B के लिए A जो है वो हो जाता है क्रेडिटर. ऑलराइट क्लास, नाउ व्हाट, जब ये A गया है हमारे B के पास में, इसने बोला सर कैन यू प्लीज क्लियर माय ड्यूज, कैन यू प्लीज प्रोवाइड मी द पेमेंट ऑफ रुपीज 10,000. बट द थिंग इज कि B की फाइनेंशियल पोजीशंस अभी सही नहीं थी. सो B डिनाइड. B ने बोला कि सॉरी सर, राइट नाउ आई एम फेसिंग सम शॉर्टेज ऑफ फंड्स. तो A ने बोला सर देन व्हाट वी कैन डू. तो B ने बोला कि सर आप मेरे नाम पर एक बिल इशू कर दो, एक बिल इशू कर दो कि मैं आपको आज से 2 महीने बाद में 10,000 रुपीज का पेमेंट करूंगा. मतलब यू हैव टू मेंशन दीज कंडीशन इन दैट पर्टिकुलर बिल. और B ने बोला है A को कि आप मेरे नाम पर एक बिल इशू कर दो और मैं उस बिल को एक्सेप्ट करके आपको वापस दे देता हूं. जो भी कंडीशंस आपने लिखी हैं मैं उस पर अपना एक्सेप्टेंस दे के आपको वापस दे देता हूं. बेसिकली क्लास, अ बिल इज अ लीगल डॉक्यूमेंट which can be used as a proof for accepting payment from your debtors for in a future time. All right, and you can also sue the person if he will not paying the amount. So it is through the negotiable instrument act. इसके ऊपर जो कानून अप्लाई होता है, जो लॉ अप्लाई होता है, वो होता है हमारे पास में negotiable instrument act. Okay, as per that the bills receivable is a legal document. So जब ये A ने बिल इसे दिया और इसने इसको वापस लेके इसके पास में आ गया, तो A के लिए ये बिल कहलाता है बिल्स रिसीवेबल. इन शॉर्ट इट इज टर्म्ड एज BR, बिल्स रिसीवेबल. और B के लिए वही बिल कहलाता है बिल्स पेबल. इन शॉर्ट इट इज BP. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द टर्म्स. क्या क्या टर्म्स यहाँ पर हमारे पास में आते हैं. तो बिल जिसने इशू करा था, the person who is issuing the bill, that is your A. This particular person will be termed as your drawer. इसको क्या बोलेंगे हम लोग? ड्रॉवर बोलेंगे. जिसने बिल इशू करा है. जिसने बिल एक्सेप्ट करा था उसको हम लोग बोलेंगे क्लास ड्रॉवी. क्या बोलेंगे इसको हम लोग? ड्रॉई. ऑलराइट, एंड सम मोर terms are there for such as your due date, your bill at side, bill after side, and lots of many terms are there जो कि आज हम लोग इस सेशन के अंदर डिस्कस कर रहे हैं. So basically in this part we are discussing only about the basic terms that is going to be used in this chapter. So let's move back to the digiboard. So class, we have done with this part. We have completed the practical aspect. Now let's move further. Alright, the next we are having is meaning of bills of exchange. क्या होता है bills of exchange? We have already discussed, but let us go with the definition.
A bill of exchange is an instrument in writing containing an unconditional order signed by the maker, directing a certain person to pay a certain sum of money only to or the order of a certain person or to the bearer of the instrument. Section 5 of the Negotiable Instrument Act 1881 applies on bills of exchange. तो वही है जो मैंने अभी आपको बताया कि एक मेकर होता है, उसके अंदर कुछ कंडीशंस वो मेंशन करता है फॉर मेकिंग द पेमेंट, उसको साइन करके आगे ड्रॉई के पास में भेजा जाता है, ड्रॉई उसको एक्सेप्ट करके इट रिटर्न्स टू द ड्रॉवर हिमसेल्फ. सो लेट्स मूव फर्दर. ऑलराइट क्लास, नाउ नेक्स्ट वी आर हैविंग विद अस इज योर फीचर्स ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज. क्या क्या फीचर्स होते हैं हमारे बिल्स ऑफ एक्सचेंज के अंदर? द फर्स्ट इज योर अ बिल ऑफ एक्सचेंज मस्ट बी इन राइटिंग. ये ओरली नहीं बनाया जाता है, इट शुड बी इन रिटन फॉर्मेट ओनली. इट मस्ट कंटेन एन ऑर्डर. जस्ट रिमेंबर वन थिंग क्लास, a bill of exchange is an order to pay, it is not a request to pay. There is a big difference between these two terms, order to pay and request to pay. So a bill of exchange is always an order to make payment. The order of payment must be unconditional. There must no, it must not include any kind of conditions. All right, the payment must not depend on any particular condition. Payment करनी है तो करनी ही है, ऐसे ये लैंग्वेज उसमें यूज करी जाती है. The amount of bill of exchange must be certain. जो उसका अमाउंट है वो सर्टेन होना चाहिए, अनसर्टेन अमाउंट नहीं होना चाहिए वहाँ पे. The date of payment should be certain. जिस डेट पर आपको पेमेंट करना है वो भी आपको पूरा बताना होगा कि किस डेट पर आप पेमेंट करेंगे. It must be signed by the drawer of the bill. It must be accepted by the drawee by signing on it. जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि ड्रॉवर और ड्रॉई दोनों को ही उस बिल के ऊपर साइन करना होता है, अपना एक्सेप्टेंस प्रोवाइड कराना होता है. The amount specified in the bill of exchange in payable either on demand of the expiry of fixed period. एक फिक्स पीरियड के बाद में जब वो पीरियड ओवर हो जाता है तब उस बिल का पेमेंट करना कंपलसरी हो जाता है. अगर नहीं करते हैं, एज आई टोल्ड यू दैट द पर्सन कैन गो टू द कोर्ट एंड द पर्सन कैन sue the another person or the drawer, the drawee. The amount specified in the bill is payable either to a certain person or to his order to the bearer of the bill. It must be stamped as per the legal requirements. Stamped होता है legal requirements के accordingly. So let's move further class. Now the next we are having with us is parties to a bill of exchange. Alright, कौन कौन सी parties involve होती हैं bill of exchange में? We have discussed about the two parties, that is the drawer and the drawee. Let us have some look over here. Drawer. Drawer is the person who makes or writes the bill of exchange, as I have told you. Then it is also known as the acceptor. All right, sorry, the person on whom the bill of exchange is drawn, the drawer is entitled to receive money from the drawee, that is the acceptor. Basically the person to whom you owe the money, जिसको आप जिस person से आपको पैसे लेने हैं उसको drawee या फिर acceptor बोला जाएगा. Then it is come to the drawee part. Drawee is the person on whom the bill of exchange is drawn for acceptance. Drawee is the person who purchased goods on credit or to whom credit has been granted by the drawer. The drawee is liable to pay money to the creditor or the drawer. मैंने अभी बताया था आपको हमारे एग्जाम्पल के अंदर A जो था उसने बिल इशू करा था, गुड्स सेल्स करे थे, तो A जो था वो ड्रॉवर था और B जो था जिसने बिल एक्सेप्ट करा था और वापस दिया था, जो उसका क्रेडिटर भी बन चुका था, तो B क्या है यहाँ पे? ड्रॉई. Then the next term is your payee. P-A-Y-E-E, that is payee. Payee is the person who receives the payment from the drawee. Usually the drawer and the payee is the same person. In the following cases, drawer and payee are the two different persons. Class क्या होता है? कुछ केसेस ऐसे होते हैं जहाँ पर ड्रॉवर और पेई ये दोनों अलग अलग पर्सन हो जाते हैं. बेसिकली पेई वो पर्सन होता है जो अमाउंट रिसीव कर रहा है. सो इन नॉर्मल कंडीशंस ये माना जाता है कि ड्रॉवर एंड द पेई आर द same person, but there are certain cases such as endorsement, such as retiring of bill. These are some cases where the drawer and the payee can be the different person. So let us talk about those conditions. When the bill is discounted by the drawer from his bank, payee will be the bank. अगर आप बैंक से बिल डिस्काउंट करा लेते हो तो पेई कौन बन जाएगा? बैंक बन जाएगा. When the bill is endorsed by the drawer to his creditor, pay is the endorsee. अगर आप endorsement करा रहे हैं, we will be discuss this part practically also. तो जो next person होगा वो that person will be the payee.
Alright class, so this was all about the parties of bill of exchange. The next topic we are having with us is the promissory note. Class, negotiable instrument act में हमारे पास में दो documents हमारे syllabus में हैं. One is your bills of exchange and another is your promissory note. Basically these two documents are almost same, but the basic difference between these two legal documents are बिल ऑफ एक्सचेंज जो होता है वो एक ऑर्डर कैरी करता है. बिल ऑफ एक्सचेंज इज एन ऑर्डर टू पे, वेयर एज प्रॉमिसरी नोट इज एन प्रॉमिस टू पे. इज इट क्लियर? बिल ऑफ एक्सचेंज के अंदर जो ए था वो ऑर्डर दे रहा था बी को कि आप इतने टाइम के बाद में पेमेंट करेंगे, लेकिन प्रॉमिसरी नोट के अंदर क्या होगा, जैसे कि हमने एग्जांपल देखा, प्रॉमिसरी नोट इशू कौन करेगा? बी खुद इशू करेगा और वो प्रॉमिस करेगा दैट आई प्रॉमिस टू पे यू द अमाउंट. ऑलराइट, सो दिस विल बी द लैंग्वेज फॉर प्रॉमिसरी नोट. अ प्रॉमिसरी नोट इज एन इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग not being a bank note or a currency note containing an unconditional undertaking signed by the maker to pay a certain sum of money or to the order of a certain person or to be the bearer of the instrument. As I have told you that promissory note will be a promise to pay rather than bills of exchange will be an order to pay. Parties, who will be the parties for the promissory note? One will be of maker and the other will be the payee. जो bill जो promissory note को बना रहा है, जो issue कर रहा है, as we have seen the example for A and B, तो यहाँ पर B जो होगा वो ही promissory note बनाएगा और उसको ही हम लोग maker बोलेंगे. और पेई कौन है? जिसको आपको अमाउंट मिल रहा है, जो अमाउंट रिसीव कर रहा है. तो यहाँ पे पेई कौन होगा? जो ए था, ही विल बी द पेई. Some important terms for particularly this chapter. Let us deal about those terms. Okay, term of bill. सबसे पहले हमें क्या देखना है? term of bill. term of bill का क्या मतलब होता है क्लास? कि जितने ड्यूरेशन के लिए आपने उस बिल को इशू करा है. सपोज बिल है हमारा दैट द बी विल बी गोइंग टू पे आफ्टर 2 months. यहाँ बोलेगा बी इज पेइंग आफ्टर 30 days, इट कैन बी आफ्टर 15 days. सो दैट पर्टिकुलर टाइम पीरियड विल बी टर्म्ड एज टर्म ऑफ बिल. लेट अस हैव अ लुक. The period intervening between the date on which a bill is drawn and the date on which it becomes due for payment is called the term of bill. Next is your due date. Due date क्या होती है क्लास? Due date होती है जिस डेट पर आपको पेमेंट करना है. इसका एक फॉर्मूला भी होता है हमारे पास में, हम लोग आगे जाकर देखेंगे. बट देयर आर सर्टेन कंडीशंस फॉर कैलकुलेटिंग ड्यू डेट. वन इज योर इन केस ऑफ बिल एट साइट. कई बार क्वेश्चंस के अंदर एक वर्ड आता है हमारे पास में, बिल एट साइट. When you are going to this video session, kindly refer your DK Goel and NCERT books and please try to do the illustrations and please go through the theoretical part. As particular this session, in this session we are discussing only the theories, so please go through the terms from NCERT and DK Goels as well. So over there you can have a look that एक word आता है हमारे पास में, that is bill at site. Questions में कई बार आता है. उस केस में ड्यू डेट कैसे कैलकुलेट होती है? सो ड्यू डेट इज द डेट ऑन विच अ बिल इज प्रेजेंटेड फॉर द पेमेंट. यानी कि वहाँ पे टर्म जो होता है, बिल का जो टर्म होता है, जो टाइम पीरियड होता है, उससे कोई मतलब नहीं होता. जिस डेट पर आप बिल अपना प्रेजेंट करोगे, दैट पर्टिकुलर डेट विल बी द ड्यू डेट. ठीक है. देन इन केस ऑफ बिल आफ्टर डेट, उसमें ड्यू डेट क्या बनेगी हमारी? डेट ऑफ ड्रॉइंग प्लस द टर्म ऑफ बिल. यानी कि जिस डेट पर हम लोगों ने बिल को इशू करा है वो वाली डेट, और जो हमारा टाइम पीरियड था वो वाला टाइम, उन दोनों को हम जब प्लस कर देंगे तो जो टाइम पीरियड आएगा दैट विल बी द ड्यू डेट. नेक्स्ट, इन केस ऑफ बिल आफ्टर साइट, द ड्यू डेट विल बी डेट ऑफ एक्सेप्टेंस एंड प्लस टर्म ऑफ बिल. बिल आफ्टर साइट, बिल आफ्टर साइट का मतलब होता है क्लास, जब जो ए है, ए ने सपोज बिल इशू करा था बी को, बी ने एक्सेप्ट करके उसको ए को वापस दे दिया. ऑलराइट, तो जब ये एक्सेप्टेंस हो जाती है, उस एक्सेप्टेंस के बाद से हम लोगों का टाइम पीरियड जो है बिल का वो स्टार्ट होता है. ऑलराइट, सो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन बिल आफ्टर डेट एंड बिल आफ्टर साइट. बाय डिफॉल्ट जो भी हम लोग क्वेश्चंस देखते हैं वो बिल आफ्टर डेट के होते हैं, बट इफ समवेयर इट इज मेंशन दैट द क्वेश्चन इज फॉलोइंग बिल आफ्टर साइट, तो आपको ध्यान रखना होगा, आप जो ड्यू डेट आप कैलकुलेट करेंगे वो कहाँ से करेंगे? बिल के एक्सेप्टेंस वाली डेट से, और फिर उसमें इंक्लूड कर देंगे आप अपना टर्म ऑफ बिल, एंड देन यू विल बी अराइव एट योर ड्यू डेट पार्ट. सो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टर्म दैट वी हैव इज द डेज ऑफ ग्रेस.
क्लास क्या होता है, सपोज मैंने बोला है कि बिल का टाइम पीरियड है 2 मंथ का, ठीक है, 1 अप्रैल को मैंने इशू करा है बिल और 2 मंथ्स का टाइम पीरियड है, तो क्या होगा 1 अप्रैल से 2 मंथ करेंगे हम लोग काउंट, तो 1 मई एंड देन उसके बाद में 1 जून, उसके बाद आपको क्या होता है क्लास 3 दिन का ग्रेस टाइम पीरियड अवेलेबल कराया जाता है, 3 डेज का ग्रेस टाइम पीरियड होता है और उसी को बोला जाता है डेज ऑफ ग्रेस। यू कैन सी such 3 days are known as days of grace. It is custom to add the days of grace, compulsion नहीं है, it can be custom to add 3 days of grace. Then we are having the next term at date of maturity. The date of maturity will be जिस डेट पर आपका जो बिल है वो ड्यू हो जाएगा पेमेंट के लिए, उसको बोला जाएगा डेट ऑफ मेच्योरिटी। देन डिस्काउंटिंग ऑफ बिल, डिस्काउंटिंग ऑफ बिल का मतलब होता है क्लास हम लोगों को इमरजेंसी आ गई है, फंड्स की रिक्वायरमेंट है, सपोज ए है, ए के हाथ में बिल है ना, और उसको सपोज रिक्वायरमेंट आ गई है फंड्स की, तो ए क्या करेगा, बैंक से जाकर अपने उस बिल को डिस्काउंट करवा लेगा और फिर उसके बाद में जो है वो पैसा बैंक से ले लेगा, ठीक है। तो उसको बोला जाता है डिस्काउंटिंग ऑफ बिल। उसके बाद आता है हमारे पास में एंडोर्समेंट ऑफ बिल। एंडोर्समेंट का मतलब होता है क्लास जब हम हमारे बिल को किसी थर्ड पर्सन को एंडोर्स कर देते हैं, सपोज जो ए था, ए को पेमेंट करना था सी को, सी एक उसका क्रेडिटर है, उसको पेमेंट करना था, तो ए ने बोला देख मेरे पास में ये बिल है, सो यू कैन टेक इट विद मी, और बी इसके नाम पर पेमेंट कर देगा 2 महीने बाद में। हम लोग इसका प्रैक्टिकल एस्पेक्ट देखेंगे इन आर द कमिंग वीडियो सेशंस, डोंट वरी अबाउट दैट, राइट नाउ वी आर जस्ट गोइंग टू द थ्योरेटिकल पार्ट, ठीक है। तो एंडोर्समेंट मतलब जब हम हमारा बिल किसी थर्ड पार्टी को या हमारे क्रेडिटर को दे रहे हैं, ड्रॉवर दे रहा है अपना बिल उसके क्रेडिटर को, तो वो बोला जाएगा एंडोर्समेंट, ओके। नेक्स्ट, बिल सेंट फॉर कलेक्शन। Many a times when a drawer seems to be busy while the maturity date is nearby, तो वो क्या करेगा, अपने बैंक को बिल दे देगा और उसको बोल देगा that you have to collect the amount on my behalf, so that particular thing will be termed as bill sent for collection. Then it is the dishonor of bill. Dishonor of bill का मतलब होता है क्लास ड्यू डेट आ चुकी है, ड्यू डेट पर आके बी ने, जो बी था अपना, जो ड्रॉई था हमारा, उसने पेमेंट करने से मना कर दिया है, ऑलराइट। तो ऐसे केस में वो बोला जाएगा डिसऑनर ऑफ बिल, यानी कि ड्यू डेट पर अगर पेमेंट नहीं हो पाता है तो दैट विल बी टर्म्ड एज डिसऑनर ऑफ बिल। देन इट इज नोटिंग ऑफ बिल। नोटिंग ऑफ बिल है टू ऑब्टेन द प्रूफ ऑफ डिसऑनर ऑफ अ बिल, इट इज रीसेंट टू द ड्रॉई थ्रू अ लीगली ऑथोराइज्ड पर्सन कॉल्ड notary public charges a small fee for providing this service known as noting charges. So class आप देख सकते हैं कि जब भी डिसऑनर हो जाता है बिल का तो हम लोगों को एक लीगल नोटिस के थ्रू, जो ड्रॉवर होता है वो लीगल नोटिस के थ्रू अपने उस बिल को ड्रॉई के पास में वापस भिजवा देता है, ठीक है। कोर्ट के पास में गया, बिल लेकर गया और अपने ड्रॉई को उसने बिल भिजवा दिया थ्रू अ लीगल नोटिस, तो उसको बोला जाएगा नोटिंग ऑफ बिल। उस पर नोटिंग चार्जेस भी हम लोगों को पे करने पड़ते हैं। ऑलराइट, नेक्स्ट इज द रिटायरमेंट ऑफ अ बिल। रिटायरमेंट मतलब जब आपने अपनी ड्यू डेट पर आपने मीट आउट कर लिया अपनी लाइबिलिटी, पेमेंट कर दिया है, बी ने पेमेंट कर दिया होगा, तो दैट विल बी रिटायरमेंट ऑफ बिल। ओके, सो क्लास अ गुड न्यूज़ फॉर ऑल ऑफ यू, इन दिस टाइम पीरियड हमारे सिलेबस में से कुछ डिडक्शंस हुआ है, पर्टिकुलरली फ्रॉम दिस चैप्टर। सो दिस इज योर डिलीटेड सिलेबस फॉर बिल्स ऑफ एक्सचेंज। द डिलीटेड टॉपिक्स आर द रिटायरमेंट ऑफ बिल। रिटायरमेंट ऑफ बिल एक टॉपिक है, वो नहीं है अब हमारे पास में, और एक है रिन्यूअल ऑफ बिल। सो दीज 2 टॉपिक्स इज नॉट नाउ अवेलेबल फॉर द क्लास 11 syllabus, राइट। So that was all class. Thank you so much and stay home, stay safe. Thank you.